नमस्ते। यह वीडियो है रिगार्डिंग FIR 152 22 अक्टूबर 2020 पुलिस स्टेशन धनौला बरनाला पंजाब की। एक्यूज्ड ASI मिस्टर गुरमेल सिंह, हेड आर्मर, सेक्सुअल हरासमेंट केस, माइसेल्फ मनिंदर कंप्लेनेंट। यह वीडियो मैं बना रही हूँ आप सभी को एक बहुत ही मज़ेदार ऑडियो मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए। आज तारीख है 9 जुलाई 2021। ASI मिस्टर गुरमेल सिंह जो इस FIR 152 के गुनहगार हैं, उन्होंने 6 महीने काटे जेल में। किस्मत अच्छी थी उनकी जो कोरोना आ गया और पंजाब हाई कोर्ट ने जेल्स खाली करने का ऑर्डर पास किया और अब मिस्टर गुरमेल सिंह जून 2021 से इंटरिम बेल पर बाहर हैं पंजाब हाई कोर्ट के अगले ऑर्डर तक। पर अभी उनका रेगुलर बेल जमानत नहीं हुई है उनकी। जो मैं ऑडियो आगे अटैच करने वाली हूँ उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अभी मिस्टर गुरमेल सिंह की ज़मानत नहीं हुई है और उनकी ज़मानत की जो अगली तारीख है वो है 1 सितंबर 2021। मिस्टर गुरमेल सिंह लगे हुए हैं मुझ पर दबाव बनाने में कि मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। इसी के रिगार्डिंग उन्होंने 3 जुलाई 2021 दोपहर 2:23 पर मुझे एक कॉल करवाया। कॉल करने वाली एक लड़की थी जो अपने आप को पंजाब हाई कोर्ट का एडवोकेट बताती हैं, वकील बताती हैं अपने आप को पंजाब हाई कोर्ट का, और अपना नाम बताती हैं मिस मनप्रीत घुम्मन। जिस मोबाइल नंबर से मुझे कॉल आया वो है 7973529627। इसका स्क्रीनशॉट मैं आगे ऐड कर रही हूँ। मुझे तो यह कॉल फेक फर्जी लगी। आप लोग सुनिए, देखिए, गेस कीजिए और मजे लीजिए। ASI मिस्टर गुरमेल सिंह। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी, कौन? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, हाँ ਹਾਈ जी, ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। हाँ जी मैम बोलो। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी फिर ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ मैम ਵਿੱਚ तुसी की डेजिग्नेशन है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा ठीक है, हाँ जी बोलो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ, ठीक है, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है मैम की नाम ਉਹ है वो एडवोकेट ਦਾ? ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕੱਟ। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਮੈਡਮ। मैम ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੇਸ, ਹੈਨਾ। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ठीक है ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। जी मैम ठीक है ਠੀਕ ਹੈ, जी ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ जी जी ठीक है ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जी 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 ਠੀਕ ਹੈ, जी ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਵੀ ठीक है ਲੇਡੀ ਹੈ ਚਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾ। ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾਂ, ਹੋ ਕੱਲ ਜਾਏ। ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਜੱਜ ਬਿਲकुल ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ। ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਰਵਰਡਲੀ ਇਹ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਮ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਮੈਮ।
वेल, मिस्टर गुरमेल सिंह जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूं। उन्होंने मुझे 20 लाख का ऑफर भी दिया है। मिस्टर गुरमेल सिंह कहते हैं कि वो सारा दिन मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी मांगने को तैयार है। मेरे दोस्तों के पास जा रहे हैं, उनके सामने जाकर वो लिटरली रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। उन्हें जाकर कहते हैं कि उनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अपने कैंसर के मरीज़ होने का रोना रो रहे हैं, जबकि एक बार उन्होंने मुझे खुद ही बताया था कि उनका कैंसर अब ठीक हो चुका है। आज मिस्टर गुरमेल सिंह एएसआई, जो कि एक इंडियन पुलिस एम्प्लॉय हैं, मेरे सामने गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांग रहे हैं। पर मैं हमारे भारत देश की सारी जनता को एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हमारे देश की अधिकतर पुलिस को आम जनता पर रहम आता है कभी? फिर चाहे वो बेवजह मारने पीटने की बात हो, रिश्वत लेने की बात हो, या दबाव से आम जनता को परेशान करने की बात हो। जब अधिकतर भारतीय पुलिस इतनी गिरी हुई है, उन्हें कभी आम जनता पर रहम आता ही नहीं, तो ऐसी बेरहम और गिरी हुई भारतीय पुलिस मिस्टर गुरमेल सिंह जैसे गिरे हुए इंडियन पुलिस एम्प्लॉयज़ पर हमारे जैसी आम जनता को क्यों रहम आएगा? एएसआई मिस्टर गुरमेल सिंह कहते हैं कि वो कैंसर के मरीज़ हैं, जबकि उन्होंने मुझे कभी बताया था कि उनका कैंसर अब ठीक हो चुका है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं किसी की कोई हमदर्दी हासिल नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। मिस्टर गुरमेल सिंह ने क्योंकि खुद को एक कैंसर का मरीज़ बताया है, सिर्फ इसलिए। मुझे मिर्गी की बीमारी है पिछले 26 सालों से, यानी बचपन से, और यह बीमारी मेरी बहुत ही सीरियस लेवल तक है। बचपन में भी सीरियस लेवल तक ही थी। इतनी सीरियस लेवल तक है कि मैं हफ्ते में 3 या 4 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर पाती, और वो भी काम जो मैं करती हूँ वो मुझे एक एक दिन छोड़कर ही काम करना पड़ता है, एक एक दिन का रेस्ट लेकर ही मुझे काम करना पड़ता है। तकरीबन रोज़ ही मेरी तबीयत ख़राब रहती है। मिस्टर गुरमेल सिंह को यह बात बखूबी पता थी, और मिस्टर गुरमेल सिंह ने जब मुझे सेक्सुअली हरास करना शुरू किया, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दी। उन्होंने कहा कि मैं तेरे दबे हुए पैसे निकलवा कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे, यानी एक मिर्गी की मरीज़ को, जो पहले से ही अपनी ज़िंदगी में अपनी बीमारी के कारण बहुत ही परेशान है और बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है, उसे उनके साथ सेक्स करना होगा। यह ऑफ़र दिया था मुझे मिस्टर गुरमेल सिंह ने, और इसका मैंने वीडियो अटैच किया है, और ये वीडियो कोर्ट में सबमिट हो चुका है। उस वक्त एक बार शाम को मिस्टर गुरमेल सिंह मुझे कॉल करते हैं, उनका जो ऑफ़र उन्होंने मुझे दिया था उसका जवाब जानने के लिए। उन दिनों मेरी तबीयत पिछले हफ्ते भर से बहुत ख़राब चल रही थी। मिस्टर गुरमेल सिंह मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या सोचा तूने मेरी ऑफ़र के बारे में? मैंने उन्हें कहा कि सर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, आप प्लीज़ मुझे बाद में कॉल करें। उस वक्त मिस्टर गुरमेल सिंह का जवाब था, हाँ, तेरी तबीयत और तेरी बीमारी के बारे में तो सुन लिया मैंने, लेकिन तो मुझे ये बता कि तूने मेरी ऑफ़र के बारे में क्या सोचा, जो मैंने तुझे सेक्स की ऑफ़र दी थी उसके बारे में। मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मिस्टर गुरमेल सिंह जैसे जलील पुलिस एम्प्लॉय को जब मेरी तबीयत पर रहम नहीं आया, फिर मुझे उनके कैंसर के मरीज़ होने पर क्यों रहम आएगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके मरीज़ होने पर, कैंसर के मरीज़ होने पर कोई रहम आना भी चाहिए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, अपने परिवार के साथ नहीं रहती, और अपनी मेहनत से कमाती हूँ, और जिस तरह मेरा गुजारा होता है मेहनत से, मैं वो गुजारा करती हूँ। मैं धनौला में 2 साल से एक परिवार के साथ रह रही थी किराए पे। उन्होंने मुझे कमरा दिया था, और मेरे मकान मालिक को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे मेरे मकान मालिक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मुझसे खुश थे, मैं उनकी इज्जत करती थी। मिस्टर गुरमेल सिंह ने अपने एक ex-MC दोस्त मिस्टर बलविंदर सिंह जसड़वालिया का मेरे मकान मालिक के ऊपर दबाव डलवाकर मुझसे वो कमरा खाली करवा दिया। मिस्टर बलविंदर सिंह जसड़वालिया, कहने को तो वो एक ex-MC रहे हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो आदमी सच्चाई और इंसाफ का साथ नहीं दे सकता, उसे अपने फ़र्ज़ का एहसास ही नहीं है। ऐसे लोग ex-MC बनने के काबिल ही नहीं हैं। मेन पॉइंट पर आते हैं। मिस्टर गुरमेल सिंह ने मेरा कमरा खाली करवा कर मुझे बेघर कर दिया। जब उन्हें मेरे ऊपर उस वक्त रहम नहीं आया, तो आज की तारीख में मैं उनके ऊपर क्यों रहम करूं? उस वक्त तो उन्हें बहुत गुरूर था अपने पुलिस एम्प्लॉय होने का। उन्होंने मुझे धमकियां भी दिलवाई। उनकी बीवी ने मुझे बहुत जलील करने की कोशिश की। अपने पति को वो संभालेंगी नहीं,
लेकिन दूसरों की बेटियों को बेवजह जलील करने से ऐसी औरतें पीछे नहीं हटती। जब मिस्टर गुरमेल सिंह जलील काम कर रहे थे मुझे सेक्सुअली हरास करने का, और उस वक्त मैंने उन्हें समझाया भी था कि वो गलत रास्ते पर है, उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, उस वक्त तो उन्हें अपने बीवी बच्चों का कोई दुख तकलीफ दिखाई नहीं दी थी। शायद उस वक्त उन्हें बहुत गुरूर था अपने पुलिस एम्प्लॉय होने का। ऐसे लोगों पर रहम करने का सवाल ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हमारे देश के ऐसे जलील पुलिस एम्प्लॉयज़ को बीच सड़क में लाकर पीटना चाहिए। शायद 100-200 सालों तक हमारे देश का पुलिस डिपार्टमेंट सुधर जाए। पर मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। हमारे देश की अधिकतर पुलिस जो है वो घटिया, जलील, बेरहम ज़रूर है, लेकिन हमारे देश में नेक पुलिस एम्प्लॉयज़ की भी कमी नहीं। मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स रखना चाहूँगी उन पुलिस एम्प्लॉयज़ के जिन्होंने मेरे इस केस में मुझे हमेशा गाइड किया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ADC मिस्टर आदित्य ढचलवाल, SSP बरनाला मिस्टर संदीप गोयल, SSP संगरूर मिस्टर विवेकशील सोनी, DSP सर मिस्टर लखवीर सिंह टिवाना और उनका पूरा स्टाफ, उनके पहले वाले रीडर भी, DSP सर मिस्टर लखवीर सिंह टिवाना, उनके सपोर्ट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई एम हाईली ग्रेटफुल, हाईली थैंकफुल टू मिस्टर लखवीर सिंह टिवाना एंड हिज स्टाफ। XSPD मिस्टर विर्क जो अब रिटायर हो चुके हैं, और उनके उस वक्त के रीडर SPH मैम मिस हरवंत कौर और उनके पहले वाले रीडर मिस्टर सांघा। लेकिन मैम का जो अब का स्टाफ है उन्होंने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मैम के डिपार्टमेंट में, हरवंत मैम के डिपार्टमेंट में मुझे सिर्फ हरवंत मैम का और उनके पहले वाले रीडर का ही सपोर्ट रहा। मैम के डिपार्टमेंट में एक लड़की है, उसने अमृत छका हुआ है, नाम नहीं मुझे मालूम उनका। जब मैंने बयान दिया था उन्होंने मुझे मेरा बयान मॉडिफाई करने के लिए कहा कि इस बयान में ये मत लिखवाओ, वो मत लिखवाओ, ये लिखवाओ, वो लिखवाओ। उस वक्त मिस्टर सांघा मैम के जो पहले वाले रीडर थे वो इंटरफेयर उन्होंने बीच में किया और उन्होंने कहा कि आपको बीच में ये बयान मॉडिफाई करवाने का कोई हक नहीं है, मनिंदर जो बयान देना चाहेंगी ये वही देंगी। उस वक्त मैंने वही बयान दिया जो मैं देना चाहती थी। SHO धनौला मिस्टर विजय कुमार, SSP सर के प्रेजेंट रीडर, RTI डिपार्टमेंट, SSP डिपार्टमेंट बरनाला, ASI मिस्टर दलविंदर सिंह धनौला, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। लेकिन यह कुछ लोग, यह कुछ चंद लोग अकेले तो हमारे देश का पुलिस डिपार्टमेंट सुधार नहीं सकते। इन्हें भी अपनी नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने हैं। एट द एंड आई जस्ट लाइक टू से हमारे देश का अधिकतर पुलिस डिपार्टमेंट हाईली करप्ट है, बेरहम है, उन्हें आम जनता की दुख तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मिस्टर गुरमेल सिंह जैसे करप्ट, बेरहम पुलिस एम्प्लॉय को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्ते।